Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to the video. So when we talk about ARD, which is Agriculture and Rural Development subject, it's very important for NABARD Grade A exam. And majority of students who are preparing from this for this examination are not from agriculture background. Now the question comes ki how do we effectively cover this particular subject? And for that I have brought up this video wherein I'm going to tell you that how you can prepare this subject in coming 30 days. Why 30 days? Because if we talk about 2026 recruitment cycle, we can anytime expect the notification and anytime soon you will see that आपका phase 1 हो जाएगा, right? तो 30 days में कैसे effectively subject को prepare करें, that is what I'm going to tell you today. But before that, we have launched a guidebook for you. If you want this guidebook, you will have to go to the description box. Now students, what this guidebook provides you, it provides you the previous year question, the strategy, the syllabus, and if you want all these things for yourself and you want to prepare for NABARD grade A examination, आपको description box में जाना है, link पे click करना है and fill your details and download this guidebook for yourself. So with that, let's start the video and पहले इस particular subject का weightage समझते हैं. So you can see this is the pattern of phase 1 in front of you. और phase 1 में आपका जो important subject है merit section के part हैं, that is GA, ESI and ARD. तो 100 में से आपका 40% weightage है ARD का. That shows कि ARD is important for your phase 1. और phase 2 की अगर हम बात करें, अगर आप generalist post से apply करते हैं, सी इफ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम द स्पेशलिस्ट पोस्ट देन आपका फेज 2 में ARD नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल आपको फेज 1 के लिए एग्रीकल्चर पढ़नी है. बट अगर आप जनरलिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन आपको पेपर 2 भी ESI और ARD से देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपके 50% क्वेश्चन होंगे ESI से एंड 50% क्वेश्चन होंगे ARD से. दैट शोज दैट ARD इज important for both phase 1 and phase 2. So you need to cover it, right? Now how do we cover this particular subject? For that we have divided this subject into two sections. दो सेक्शन बना लेते हैं. एक होता है स्टैटिक ARD एंड देन देयर इज अ करंट ARD. क्या डिफरेंस है? देखो, स्टैटिक ARD इज बेसिकली द कंसेप्ट्स एंड फैक्ट्स दैट डू नॉट चेंज. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन जो लास्ट ईयर थी वही रहेगी, इस ईयर भी वही डेफिनेशन रहेगी एंड कमिंग ईयर में भी वही डेफिनेशन रहेगी. द डेफिनेशन इज नॉट गोइंग टू चेंज. But when we talk about number of farmers who are involved in organic farming, that number can change, and that is a dynamic factor, right? And this dynamic fact is basically part of current ARD. So static ARD is basically the concepts and facts that do not change, that remain constant. Current ARD is basically all the current affair related to agriculture and rural development. Clear? Now let's see the weightage of these two sections in बोथ द फेजेस. सो फेज 1 की अगर हम बात करें तो ARD स्टैटिक का वेटेज ज़्यादा रहता है. आउट ऑफ 40 क्वेश्चन 30 to 32 क्वेश्चंस रहते हैं आपके फेज 1 में फ्रॉम ARD स्टैटिक. और फेज 1 में करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ 40 क्वेश्चन 8 to 10 क्वेश्चंस रहते हैं फ्रॉम द करंट अफेयर. Coming to phase 2 में the weightage is again 50-50% because see we cannot say ARD static का weightage ज़्यादा है क्योंकि for past few years we have seen number of questions from ARD current affair has increased. ठीक है, तो phase 1 के लिए static ज़्यादा important है, but phase 2 के लिए again we cannot say क्या important है, दोनों के ही chances हैं पूछे जाने के. Last year 2025 में 50-50% questions were there from static and current. ठीक है, तो आपको static and current दोनों ही अच्छे से पढ़ना है. Now let's come to the topic that how do we cover these sections, right? सो पहले अगर हम सिलेबस की बात करें, देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका सिलेबस. किसी भी एग्जामिनेशन में सिलेबस आपको बताता है कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, राइट? सो अगर हम ARD के सिलेबस की बात करें स्टूडेंट्स, सो आपको नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया है, यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू ऑल्सो कि ये आपका सिलेबस है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का. अब इस सब्जेक्ट सिलेबस में आपको बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए हैं. कुछ आपके टॉपिक्स ये हैं जो जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, जिसमें एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, ब्रांचेस, एग्रोनॉमी, क्रॉपिंग सिस्टम, एग्रोक्लाइमेटिक जोन, सीड प्रोसेसिंग, फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग, क्रॉप इंटेंसिफिकेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारे टॉपिक्स हैं. तो ये हो गया जेनेरिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड. देन देर आर सर्टन टॉपिक्स दैट आर गिवन सेपरेटली, जैसे कि
सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देन वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन मैनेजमेंट, फार्म एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, ओके। देन देर इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स हैं आपके जो स्टैटिक से रिलेटेड हैं। बट कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ये भी दिखाई गई है कि आपको करंट भी पढ़ना है, जैसे कि आप देखोगे प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ एग्रीकल्चर एंड एक्टिविटीज पार्ट ऑफ सिलेबस, आपका रूरल डेवलपमेंट का जो भी कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी करंट अफेयर है, वो आपको पढ़ना है। देन कुछ स्कीम्स आपको डायरेक्टली दी गई है, जैसे कि मनरेगा, NRLM, आजीविका रूरल ड्रिंकिंग एंड वाटर प्रोग्राम, स्वच्छ भारत, रूरल हाउसिंग पूरा, एंड जितने भी आपके रूरल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो सिलेबस ने आपको बता दिया कि आपके क्या टॉपिक्स हैं, क्या स्टैटिक आपको पढ़ना है, क्या करंट आपको पढ़ना है, राइट। So this is the syllabus. Now let's understand how do we cover this syllabus, right? तो पहले अगर हम एग्रीकल्चर स्टैटिक की बात करें, राइट, ARD स्टैटिक की बात करें, तो इकोलॉजी तक जितना भी आपका सिलेबस है वो एग्रीकल्चर स्टैटिक से बेस्ड है। और उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से करने हैं, जिन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, दैट इज एग्रोनॉमी, फार्मिंग सिस्टम, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, animal husbandry and poultry, fisheries and forestry. These are the most important topics. Once you have done these topics, then seed and sowing is important, right? Farm agriculture engineering is important, right? Then other is like your agriculture extension is important, right? So these are some other important topics after the most important topics. So once you have done this, then you will go for these topics and then cover the rest of the topics. ठीक है? So these are the important topics from the entire syllabus that you have to look for. Now क्या sources होने चाहिए agriculture static के? So there are books like अरुण कात्यान, नीमराज सुंडा and RK शर्मा. तो आपको अरुण कात्यान बुक पहले पढ़नी है. नीमराज सुंडा and RK शर्मा are for those who have some agriculture knowledge और जिन्होंने एग्रीकल्चर पढ़ी है. देन एनिमल हस्बेंड्री के लिए आप इस बुक से जो सर्टेन टॉपिक्स है यू कैन पिक that from this book. Then there is a Jagdishar Sahai book and then there is a ICR fisheries book, right? तो ये sources हैं. अब इन books के अलावा अगर आपको books नहीं पढ़ना है, then there is a website which is ICAR e-course website. Okay, then there is a Tamil Nadu Agriculture University website. तो ये इन वेबसाइट से भी आप इन टॉपिक्स को सर्च कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, एंड यू कैन प्रिपेयर दिस एग्रीकल्चर सब्जेक्ट फॉर योरसेल्फ, राइट। देन कमिंग टू नेक्स्ट पोर्शन दैट इज ARD करंट अफेयर. तो ARD करंट अफेयर में आपको सारी स्कीम्स पढ़नी है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से रिलेटेड. देन रिपोर्ट्स जो भी रिलीज होती है दैट कवर्स द फैक्ट एंड डेटा ऑफ एग्रीकल्चर, देन एग्रीकल्चर रिलेटेड इनिशिएटिव. सो सच काइंड ऑफ ARD करंट अफेयर यू हैव टू read. Now students, क्या है मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है? सो देर इज अ लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज एंड इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में ऑब्वियसली आपका एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर आ गया, एनिमल हस्बेंड्री, फाइनेंस, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, जल शक्ति, हेल्थ एंड फैमिली प्रोग्राम एंड MSME. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. देन यू कैन लुक फॉर द इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। इसमें फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, दीज मिनिस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट. ओके, कमिंग टू द सोर्सेज. सो सोर्सेज आपका होना चाहिए मेन इंपॉर्टेंट सोर्सेज PIB, देन द न्यूज़पेपर. इफ़ यू वांट टू कवर रिपोर्ट्स तो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री की वेबसाइट में आपको जाना पड़ेगा, यू हैव टू डाउनलोड द रिपोर्ट. एग्जीक्यूटिव समरी आपको पढ़नी पड़ेगी. देन देर इज़ अ कृषि जागरण वेबसाइट जिससे आप फर्दर ARD रिलेटेड करंट अफेयर कवर कर सकते हो. तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बात करी कि ARD क्या है, ARD में स्टैटिक कैसे पढ़ना है, सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, सिमिलरली एग्रीकल्चर करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज एंड सोर्सेज क्या है. नाउ लेट्स कम टू द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज 30 days प्लान फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो स्टूडेंट्स, you can see I have divided your entire syllabus into different section, right? So इस तरीके से you can divide your entire syllabus and prepare accordingly. अब जो ये topics हैं ये ARD static के हैं, ठीक है। अब जो आपकी स्कीम्स होती है स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। और स्कीम्स आपने एटलीस्ट 5 to 6 months बिफोर जो आपकी स्कीम्स न्यूज़ में रही हैं, बिफोर योर एग्जामिनेशन, दैट यू हैव टू कवर. तो उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, राइट. सो इफ़ यू आर टेकिंग 2 hours फॉर द static part, then you will take out 1 hour daily, 1 to 1.5 hour daily for ARD schemes, ठीक है। तो आपने डेली इसके साथ
नॉट 1.5, इफ नॉट 1.5, एटलीस्ट 1 घंटा आपने रोज स्कीम्स पढ़नी है अलॉन्ग विद दीज स्टैटिक टॉपिक्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, स्कीम इज समथिंग दैट यू विल रीड कंटिन्यूसली, बट डे 1 से 5 तक आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को कवर कर सकते हो, डे 6 टू डे 9 सॉइल कवर कर सकते हो, डे 10 और डे 11 में आप वाटर रिसोर्सेज वाला टॉपिक कवर करोगे, डे 12 से डे 13 में आप फार्म एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कवर करोगे, डे 14 टू डे 15 आप प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर कवर करोगे, 15 से 18 तक आप एनिमल हस्बेंड्री कवर करोगे। साथ साथ में आपने एआरडी स्कीम्स पढ़ते रहना है, ठीक है। डे 18 से 19 आप फिशरीज, डे 20 से 21 फॉरेस्ट्री, डे 22 को आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कवर करोगे, 23 इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, एंड 25 टू 30 आपने एआरडी करंट अफेयर करना है। तो 23 तक आपने एआरडी स्कीम्स भी पढ़नी है 1 आवर डेली अलॉन्ग विद दिस अदर टॉपिक्स जो स्टैटिक के टॉपिक्स हैं, और 25 से लेकर डे 30 तक आपने सिर्फ और सिर्फ एआरडी करंट अफेयर कवर करना है, right? So that is how you will cover your entire ARD syllabus in 30 days, and this is your 30-day plan for ARD, covering your ARD for NABARD grade A examination. So students, I hope this video was helpful, but before I end this video, I would want to show you our courses basically. So if you want to prepare with us, we have launched few courses. For that, you will have to visit our website, go to the courses, click on the NABARD grade A course, and scroll down. You will see the courses, okay. So you will see that we have we have multiple courses. So there is a gold course for phase 1 phase 2 interview preparation. There is a silver course if you want content for merit section of phase 1 phase 2 and interview. Then we have test series. There is a top up course for students who were preparing for RBI. They have material for RBI but उनको NABARD के लिए चाहिए, right? तो ये top up course उनके लिए हम. So that's all. Yes, I hope it was helpful. Thank you so much.